first sign which appears at the age of 6 months is craniotabes. Craniotabes is ping pong ball sensation of skull. We can see craniotabes in this image also. Features which appear between 6 to 12 months of age are frontal bulging, Harrison sulcus, rachitic rosary, widening of wrist joint, and pectus carinatum, that is pigeon chest. This is frontal bulging. We can see frontal bulging clinically. This is also frontal bulging. These are Harrison sulcus. Harrison sulcus are seen between 6 to 12 months of age, and Harrison sulcus are depressions produced due to पुल ऑफ डायफ्रागम ऑन रिब केज. जब रिब केज खींचेगा ना डायफ्रागम, रिब केज को जब खींचेगा ना डायफ्रागम, डायफ्रागम की तरफ से पुल पड़ेगा ना, तब ये देखने को मिलता है. इनको बोलते हैं हैरिसन सल्कस. ये भी हैरिसन सल्कस है. These are also Harrison sulcus, which are due to depressions produced due to pull of diaphragm on rib cage. Harrison sulcus. These are rachitic rosary. These are also seen around 6 to 12 months of age in the baby of rickets. These rachitic rosary are rounded and non-tender, while scorbutic rosary are tender and sharp. These are also rachitic rosaries. Rachitic rosaries are non-tender and round. These are also rachitic rosaries. These are widening of wrist joint which are seen at 6 to 12 months. Wrist widening we can see in this image clearly. These are also wrist widening. These are multiple images. Wrist widening we can again see. This is pectus carinatum, that is pigeon chest. This pigeon chest is also seen during 6 to 12 months of age. The features which are seen during 6 to 12 months are, I am again speaking, these are frontal bulging, Harrison sulcus, rachitic rosary, widening of wrist joint, and pectus carinatum. This is genu varum or bow legs. Features which are seen more than 12 months of age in rickets are 12 months of age baby in case of rickets are bow legs and knock knees, windswept deformity, delayed dentition, double malleoli sign, short stature, that is short limb dwarfism, that is pathological dwarfism, recurrent fractures, and cardiomyopathy in long-standing cases. In untreated cases, dilated cardiomyopathy is seen. And hot cross bun skull, that is also seen more than 12 months of age. These are bow legs. Bow legs you can see. These are also bow legs. Genu varum deformity. जब ये नी है, जॉइंट जॉइंट के बाद का देखा जाता है. अगर यदि वो मीडियल जा रहा है तो वेरम बोलते हैं. अगर यदि वो लेटरल जा रहा है जॉइंट के बाद तो उसको वेलगस बोलते हैं. दीज आर ऑल्सो जीनु वेरम. जैसे नी से देखेंगे, नी के बाद का हिस्सा किधर जा रहा है, मिडिल जा रहा है वेरम, अगर लेटरल जा रहा है वेलगस. दीज आर जीनु वेलगस, जीनु वेलगम, दैट इज नोकनीज. जीनु वेलगम, नोकनीज. Genu varum and Genu valgum both can be seen together. Windswept deformity.
This is also seen in some cases of rickets. एक में एक एक पैर में हो जाएगा जिनु वायरस, दूसरे में जिनु वेलगम. दिस इज delayed dentition. Delayed dentition is also seen in case of rickets. These are double malleoli sign. This is also double malleolar, which can be seen clearly in this image. These are different images which are put together. You can see rachitic rosary, short stature, Harrison sulcus, and frontal bossing plus pigeon-shaped chest. This is the wrist joint X-ray, which is showing cupping, splaying, and fraying. First radiological sign in case of rickets is loss of provisional zone of calcification, and then metaphyseal changes are seen, which are in a sequence, and the sequence is fraying, then cupping, then splaying. Remember this: fraying, then cupping, then splaying. This is very important point. First, fraying is seen. Fraying is irregular metaphysis. कपिंग, कपिंग का मतलब क्या है? जो ये रहेगा ना मेटाफाइसिस, जो जॉइंट रहेगा, मेटाफाइसिस जो रहेगा वो क्या है, डीप हो जाएगा. जैसे कप होता है ना, थोड़ा गहरा होता है, चाय पीने के लिए यूज करते हैं, ठीक है. ये कप वगैरह की थोड़ा सा गहराई हो जाएगी उसके अंदर, दैट इज कॉल्ड एज कपिंग. एंड स्प्लेइंग इज वाइडनिंग. वाइडन हो जाएगा तो उसको बोलते हैं स्प्लेइंग. तो सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा? फ्रेइंग, फिर देखने को मिलेगा कपिंग, फिर देखने को मिलेगा स्प्लेइंग. दीज आर द मेटाफाइजल चेंजेस. व्हाट इज द फर्स्ट रेडियोलॉजिकल साइन? First radiological sign is loss of provisional zone of calcification. एक calcification का zone होता है, वो loss हो जाएगा. Okay. We can see in this wrist joint image, wrist joint X-ray clearly. Cupping थोड़ा deep हो जा रहा है, fraying that is irregularities, and growth plate widening that is splaying. First fraying, then cupping, then splaying. FCS. This is also again X-ray of wrist joint, which is showing fraying, cupping, and splaying. Here in it is written that spring, but this is not spring. It is splaying. 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 Splaying means widening. This X-ray is रिकेट्स में also शॉर्ट showing स्टेचर भी देखने को fraying, मिलता है. फिर cupping. पूछे कि शॉर्ट स्टेचर किस टाइप का देखने Also को मिलता है, splaying is also तो there. शॉर्ट Can लिम्ब see. ड्वार्फिज्म टाइप का, दैट इज पैथोलॉजिकल ड्वार्फिज्म. दो टाइप के ड्वार्फिज्म होते हैं, एक फिजियोलॉजिकल, एक पैथोलॉजिकल. तो यहाँ पर जो देखने को मिलता है वो पैथोलॉजिकल ड्वार्फिज्म देखने को मिलता है. उसमें भी कौन सा टाइप? शॉर्ट लिम्ब ड्वार्फिज्म. ठीक है. रिकरेंट फ्रैक्चर्स भी देखने को मिलते हैं. ये भी मोर देन 12 मंथ्स ऑफ एज के अंदर ही देखने को मिलेंगे. कार्डियोमायोपैथी देखने को मिलती है. कौन से टाइप की? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी देखने को मिलेगी. क्यों देखने को मिलेगी? बिकॉज ऑफ हाइपोकैल्सीमिया. ठीक है. हॉट क्रॉस बन स्कल भी देखने को मिलता है इसमें. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी दिस इज द इमेज ऑफ हॉट क्रॉस बन. हॉट क्रॉस बन जो होते हैं वो ऐसे दिखते हैं, हॉट क्रॉस बन. तो हॉट क्रॉस बन स्कल देखने को मिलता है रिकेट्स में. लेकिन हॉट क्रॉस बन एक साइन भी होता है जो कि देखने को मिलता है किसमें? एमएसएससी में. एमएसएससी क्या? मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी. ठीक है. वो मिड ब्रेन में, किसमें? एमआरआई में देखने को मिलता है. यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं हॉट क्रॉस बन स्कल की. दिस इज ऑल्सो शोइंग हॉट क्रॉस बन. तो जो हॉट क्रॉस बन स्कल की बात कर रहे हैं, ये क्या होता है? जो स्कल के जो सूचर्स है ना, वो क्या हो जाएंगे? एलिवेटेड हो जाएंगे एंड फॉर्म्स रिजिज. दैट इज skull sutures become elevated and these will form ridges. This will give appearance of hot cross bun skull. This is the image in which we can see hot cross bun skull image in patient of rickets. Hot cross
क्रॉस बंस कल ऐसे दिखेंगे। हम लोग देख सकते हैं इसका, इससे बेटर कोई इमेज मिली नहीं मुझे। यही है भाई, इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। अब एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि हॉट क्रॉस बन साइन कैसे दिखता है। हॉट क्रॉस बन साइन, इसमें देख सकते हैं हम, ये एमआरआई है। इस एमआरआई में मिड ब्रेन के हिस्से में इतना क्लियरली विजिबल नहीं है, दूसरी इमेज में देखते हैं। हॉट क्रॉस बन के जैसा दिख तो रहा है लेकिन इतना क्लियरली नहीं दिख रहा है इसमें। वी कैन सी इन दिस इमेज क्लियरली हाउ हॉट क्रॉस बन साइन। इसके अंदर ये जब क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो पहले हिस्ट्री दे करके रखेगा ब्रेडिकाइनेजिया की, रिजिडिटी की प्लस माइनस ट्रिमर की। अगर यदि ब्रेडिकाइनेजिया रिजिडिटी प्लस माइनस ट्रिमर के साथ के अंदर आपको अर्ली डिमेंशिया देखने को मिलता है तो यह है लिवी बॉडी डिमेंशिया। अगर लेट डिमेंशिया देखने को मिलता है तो यह है पार्किंसोनिज्म। अगर यदि उसके साथ में ऑटोनोमिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो यह है एमएसए टाइप ए। और इसी के साथ में ब्रेडिकाइनेजिया रिजिडिटी प्लस माइनस ट्रिमर के साथ में अगर सेरिबेलर सिम्टम्स देखने को मिलता है, टेक्सिया वगैरह, तो ये है एमएसए टाइप सी। और एमएसए टाइप सी में ही देखने को मिलता है हॉट क्रॉस बन साइन। Hot cross bun sign is seen in MSA type C, that is multiple systemic atrophy. ये MRI में we can see in this image clearly how hot cross bun sign is seen. ट्रीटमेंट में क्या, न्यूट्रिशनल रिकेट्स का ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल रिकेट्स, उसमें कैसे देखा जाता है? दो रेजिमेंट चलते हैं, बस इतना याद रखो। एक ओल्ड रेजिमेंट होता है स्टोस रेजिमेंट, उसमें सिंगल टाइम में 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी का मेगा डोज दे दिया जाता है और 60,000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे इनटू 10 डेज। 10 दिन के लिए 60,000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे करके ये स्टोस रेजिमेंट होता है। एक न्यू रेजिमेंट भी है जिसके अंदर डेली ओरल विटामिन D3 12 सप्ताह तक दी जाती है। इन्फेंट के केस में 2,000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, जबकि ओल्डर के केस में 3,000 से 6,000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। साथ में हम ओरल कैल्शियम भी देते हैं, that is 50 to 75 milligram per kg per day. Thank you.